خصوصاً ملت کے اہم ترین ملت کے مجددین دین علماء شرع حدیث اور اماموں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائی، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے خود بلند نبی اس مہینے کی قدر و قیمت کی، اس دن کے اندر خوشی کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام کو خوش ہونے، خوشی کی مبارکبادی پیش کرنے کا آپ نے درس دیا۔ اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنک۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے عبادتوں میں جو لغزشیں ہو گئی ہیں، چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، اللہ تعالی ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، بنی آدم کا ہر شخص اور ہر بندہ گنہگار ہے۔ گناہوں سے بچنا چاہے تو مکمل طریقے سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے انجانے اور جانے پہچانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری اگلی زندگی کو، آنے والی زندگی کو اسی طریقے سے پرکیف بنا، اسی طریقے سے مسرت انگیز بنا۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے سامنے دربار میں دست بدعا ہیں، ہمارے دل کو منقع کر دے، صاف اور شفاف کر دے، آئینے کی طرح جھلملا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو صحابہ کی طرح پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو اسی طریقے سے پاک اور صاف کر دے جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم سے جو گناہ ہوئے، ہم سے جو انجانے میں یا جان بوجھ کر کے دل کے دھوکے میں آ کر کے، شیطان کے فریب میں آ کر کے یا اپنے ضمیر کی منمانی پر آ کر کے ہم نے جو گناہ کیا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف عنابت کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنہوں نے تیری خاطر روزہ رکھا، جنہوں نے تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اے اللہ تمام لوگوں کے چہرے پر نور برسا دے۔ اے اللہ ان کے دامن کو نیکیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو اسی طریقے سے باوقار بنا، باوقار شخصیت بنا۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ سپاہی بنا، ہماری اولادوں کو اے اللہ جنگجو بنا، ہماری اولادوں کو اے اللہ جانباز سپاہی بنا۔ اے اللہ انہیں ایمان کی اتنی قوت ہے کہ اگر جان کا نذرانہ لگانا پڑ جائے تو وہ جان کی بازی لگانے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ اے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہم برائی اور بربدیت کے دور میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں ایمان کا پہاڑ تو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اے اللہ ایمان پر ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو آدمی ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اسی پر جم جاتا ہے، اسی ایمان پر قائم اور دائم رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دراصل یہی ایمان ہے کہ جو آدمی ایمان لے آئے اور ایمان پہ جم جائے، اصل میں یہی ایمان ہے۔ تو یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید الفطر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی اس خوشی اور مسرت کو بار بار ہمارے پر سایہ فکن کرے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس دن کو مزید خوشی والا دن بنا دے اور اس دن کے بعد جو دن آنے والے ہیں، جو رحمتوں اور برکتوں کا جو سلسلہ کٹنے والا ہے، اے اللہ ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان تو چلا گیا لیکن نماز نہیں گئی، رمضان چلا گیا لیکن تقویٰ نہیں گیا، رمضان چلا گیا لیکن عمل نہیں گیا، رمضان چلا گیا لیکن مومن کا تہجد نہیں جائے گا، رمضان چلا گیا لیکن مومن کا اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، رات میں جگنا، قیام اللیل کرنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یہ نہیں گیا، کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ رمضان سے ٹریننگ کورس ہے۔ رمضان دراصل ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان دراصل ہمارے ہم جو ہے خابیدہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، بیدار ہو جائیں۔ اور جب ہمارا ضمیر بیدار ہو گیا ہے، ہم ہوش میں آ گئے ہیں، ہوش
اس کے नाखून हमने ले लिया है, तो अब बेदार ही रहें, सोने की कोशिश न करें। आखिरत के लिए तकवा, आखिरत के लिए तौशा अख्तियार करें, आखिरत के लिए अपने लिए तौशा अख्तियार करें, आखिरत के लिए सफर की मंजिल को आसान करने के लिए, आखिरत की मंजिलों को आसान करने के लिए अपने दामन को नेकियों से भरें। अल्लाह ताला हमारे पिछले तमाम गुनाहों को कफारा बनाए, हमारे तमाम गुनाहों को खत्म कर दे। ऐसा हमारे दिल पर जो स्याह धब्बे लगे हैं, उस पर इतनी बारिश बरसा कि हमारे दिल के तमाम स्याह धब्बे मिट जाए। आमीन। ये खुशी का दिन है, खुशी का हम इजहार कर सकते हैं, लेकिन जायज तरीके से। हम इस्लामी अक़दार और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए खुशी का इजहार कर सकते हैं। ईद के मौसम में मस्जिदुल नबी में हबशी लोग खेल का नजारा करते, नेज़े और तलवार का मुजाहरा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा को बुलाते हैं कि आ जाओ तुझे खेल दिखाते हैं। तो बीवी आपके पीछे आ जाती है, दरवाजे पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे खड़े होकर के हबशियों का खेल देखते हैं। आप भी देखते हैं, आपकी बीवी भी देखती है। ये खेल उस दिन हो रहा है जिस दिन खुशी का दिन होता है। ईद के दिन ये लोग हबशी लोग खेल खेलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ खेल देखते हैं। अगर खेल का मुजाहरा कर सकते हैं, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, या इस तरीके से खुशी और मुसर्रत का इजहार कर सकते हो तो इस्लाम में बजा है, ये बेचा नहीं है। इस तरीके का इजहार हम कर सकते हैं। ये खुशी का दिन है, लेकिन खुशी का दिन ऐसा ना हो कि खुशी में हम ऐसा मस्त हो जाए, ऐसा मगन हो जाए कि फिर से पुरानी आदाते कबीहा को अपनाने लग जाएं। अच्छी जो आदतें, अच्छी खसलत जो पैदा हो गई थी उसको हम करने लग जाएं। खुशी हमको याद दिलाती है, या ईद हमको इस बात का पैगाम देती है कि आइंदा आने वाली जिंदगी के अंदर हम खुश रहें। खुशी हमेशा आदमी को खुशी का इजहार करना चाहिए। आपके ऊपर अल्लाह की मुसीबत आ जाए, जमाने का पहाड़ टूट जाए, आपके चेहरे पर गमगीनी का असर जाहिर नहीं होना चाहिए। अगर एक मुसलमान भाई आपसे सलाम करता है, आपको खंदा पेशानी से मिलकर के जवाब देना चाहिए। ये जाए कि आपके घर में बीमारी हो, ये जाए कि आप पर आफत और मुसीबत हो, आपसे अगर कोई सलाम करता है, आपको खंदा पेशानी से हंसते बोलते चेहरे के साथ सलाम का जवाब देना चाहिए। और आज तो खुशी का दिन है। अगर कोई शख्स किसी से नाराज है तो आज नाराजगी को दूर कर ले। आज जोड़ने वाला दिन है, आज जोड़ने का दिन है। हर शख्स को एक दूसरे के दिल से जोड़ पैदा करना चाहिए। अगर आपस में किसी को नफरत हो गई है, आपस में किसी की नहीं बनती हो, किसी से कोई नफरत पैदा हो गई हो, आपस में किसी तरह की कोई रंजिश और अदावत हो गई हो, आज जोड़ने का दिन है। एक दूसरे से जुड़ जाए, सलाम करके मुसाफा करके अपने गुनाहों को माफ करवा लें। और अगर कोई गलती है, अगर हमने ज्यादती की है तो आप माफी तलब कर लें, अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। अगर आपका भाई माफ कर देता है तो ये जो जोड़ने का दिन है, और इस दिन अपने दिल को हम साफ कर लें और एक नई जिंदगी गुजारने की कोशिश करें अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इस कैंप के लिए, इस दुनिया वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए और खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आज से आप हज़्म मुसम्मम कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बेहतर जिंदगी होगी। जो ट्रेनिंग हमने लिया है, जो कोर्स हमने मुकम्मल किया है, उस कोर्स में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जब फौजी की ट्रेनिंग होती है, जब अस्करी की तरबियत होती है, तरबियत लेकर के जब कैंप से आता है तो उसके बॉर्डर पे भेज दिया जाता है ताकि वो लड़ाई करे। जो उन्होंने तरबियत ली है, जिस चीज का उन्होंने की तालीम ली है, उस चीज का मुजाहरा अभी बॉर्डर पे आकर के करे। अगर हमने ट्रेनिंग ली है, नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग ली है, रोजा रखने की ट्रेनिंग ली है, दुआ करने की ट्रेनिंग ली है, तो रमजान गुजरने के बाद, ईद के बाद हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को मुकम्मल करके दिखाएं कि जो हमने ट्रेनिंग ली है इंशाअल्लाह उस ट्रेनिंग को हम मुकम्मल करके देखेंगे, दिखलाएंगे। तो ये रमजान का जो महीना था, अपने आप के अंदर तकवा पैदा करने का महीना था। रमजान के बाद के जो अय्याम आते हैं, उन अय्याम में हमको देखना यह है कि रमजान को हमने किस तरीके से बिताया। जो सही मानों में रमजान को सही तरीके से बिताया होगा, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी अय्याम उसके लिए बेहतर और अच्छे अय्याम होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बकिया अय्याम भी हमारे लिए बेहतर बना दे। कोशिश करें, आज कम से कम एक जरूर संकल्प लें, आज कम से कम अपने दिल में एक वादा जरूर करें कि एक सुन्नत को इंशाअल्लाह जरूर अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़्ज़ल अमाल की अल्लाह अदवामुहा व इन अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसको बराबर किया जाए, गरचे थोड़ा ही क्यों ना हो। आज से आप पाबंद कीजिए। हर किस्म के लोग, हर तबीयत और हर किस्म के मिजाज के लोग इस मस्जिद में मौजूद हैं। किसी का मिजाज है मिसवाक करना, किसी का मिजाज है तहज्जुद हमेशा पढ़ना, किसी का मिजाज है जिक्र और अस्कार करना, किसी का मिजाज है हमेशा बावजूद रहना, किसी का मिजाज है
हमेशा आजाद देना, किसी का मिजाज है हमेशा 5 वक्त नमाज़ें अपने टाइम पर अदा करना, किसी का मिजाज है फजर में कभी नाना नहीं करना, किसी का मिजाज है कि वो रसूल की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, किसी का मिजाज है दोस्ती करना, इस्लामी दोस्ती, अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। अगर तरह तरह की तबीयतों के मालिक लोग हैं तो आप आज इरादा कीजिए, आज पुख्ता इरादे कीजिए, अपने मुसम्मम कीजिए, इंशाअल्लाह एक नेकी ऐसी जरूर करेंगे जिसे जिंदगी में हमेशा करते रह जाए। जैसे कि मैंने बयान किया था, गार के अंदर जो 3 लोग छुप गए थे और गार का दरवाजा बंद हो गया, वही एक एक नेकी काम आई जिसको उन्होंने बराबर किया था, बड़ी लगन और चाहत और दिलचस्पी से किया था। अगर एक छोटी सी नेकी पर हम कायम रह जाएंगे तो ये नेकी, ये छोटा अमल जिसको हम जो है मुसलसल करते रहेंगे, जिसको हम बराबर करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये छोटी नेकी अगर हम गार में छुप जाएंगे, अगर हम गार में फंस जाएंगे, हमें वहाँ नजात दिलाएगी। अगर बंद कोठरी में दरवाजा बंद हो जाए, मुसीबतें चारों तरफ से आने लग जाए, तो ये जो है नेकी हमको रास्ता दिखाएगी, हमारे लिए नूर का काम देगी, हमारे लिए रोशनी का काम देगी। आज इरादा कीजिए, कम से कम इरादा कीजिए, जिस तबीयत के आदमी हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको मुकल्लफ करें कि आप मिसवाक के पाबंद बनिए, वजूही रहने के पाबंद कीजिए, अपने तबीयत के हिसाब से, अपने ज़मीर के हिसाब से। लेकिन फराइज को अदा करने के बाद, फराइज क्या है? फराइज ये है 5 वक्त नमाज़ें अदा करना। ये फराइज से बेहतरीन और अफजलीन फरीदा है, इसको कभी नाना न करें। इसको नाना करके रोजा भी बेकार, इसको नाना करके तहज्जुद भी बेकार, और इसको नाना करके कोई काम नहीं आएगा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन के फराइज में अहम फर्ज है, और नमाज क़यामत में अल्लाह ताला इसके बारे में सबसे पहले पूछ करेगा। इसलिए इस नमाज की पाबंदी करें। जो आदमी नमाज पढ़ता है इंशाअल्लाह वो मोमिनाना जिंदगी की मौत मरता है, और जब उसकी रूह निकलती है तो बहुत निहायत आसानी के साथ रूह निकलती है। और मोमिन आदमी जब इंतजार करता है, जब कब्र में रखा जाता है, तो फरिश्ते हर आने वाले को दबाती है, कब्र जो है हर आने वाले को दबाती है, लेकिन जो मोमिन होता है उसको निहायत आसानी के साथ कब्र दबाती है। लेकिन कब्र में जो आदमी लिटा दिया जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है, अगर आदमी नमाजी होता है, फरिश्ते उससे जब सवाल जवाब करने के लिए आते हैं और उठाते हैं, नींद से बेदार करते हैं, वो नमाजी आदमी कहता है जरा बगल हो जाओ, मेरी नमाज कदा होने वाली है, असर का टाइम निकला जा रहा है। तो ऐसी अगर सिफत अगर पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह उसी वक्त आपको जन्नत का रास्ता नजर आता चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ईमान को मुकम्मल कर दे, अल्लाह हमारे अंदर जो इख्तिलाफ है, इंतशार है, अल्लाह उसको खत्म कर दे। हम ग्रुप में, पार्टी में, हम जो है टोलियों में बटे हुए हैं, हम जिस तरीके से गैर मुस्लिमों फिरते हैं, जमाते हैं, मिलते हैं, तहजीबें हैं, उनके यहाँ जिस तरीके से अदालत और सकाफत की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती है, आज मुसलमानों में भी वही पैदा हो गया। जो एक उम्मत थी, जो एक कलमा पढ़ने वाली थी, जो उम्मत जो है एक कुरान पर ईमान रखती है, जो उम्मत एक अल्लाह पर ईमान रखती है, जो उम्मत एक रसूल पर ईमान रखती है, आज वो एक अल्लाह पर ईमान रखने वाली उम्मत, एक रसूल और एक किताब पर ईमान रखने वाली उम्मत मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ फिरकों में और मुख्तलिफ जमातों में बटी हुई है। अफसोस इस बात का है कि हम सोचने और समझने से कासिर हैं। हमें इस पॉइंट पर सोचना चाहिए, आखिर इख्तिलाफ क्यों है, आखिर इंतशार क्यों है। अगर इख्तिलाफ है हमारे दरमियान, हमारे मसलक में, हमारे समाज में, हमारे अपने दरमियान अगर इख्तिलाफात और इंतशारात हैं, तो उनका इलाज क्या है, उनका इलाज क्या है। अगर हमको बुखार लग जाता है, दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। अगर हमारी आँख की बीनाई कमजोर होने लगती है, हम चश्मा वाले के पास जाते हैं। हमारे बीवी और बाल बच्चे बीमार पड़ने लग जाए, जरा बराबर 1 मिनट भी लेट नहीं करते। लेकिन बीमारी हमारे पास दीनी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, हम मरीज है दीनी एतबार से, मुकम्मल तौर पर मरीज है। न सही से नमाज पढ़ पाते हैं, न नमाज हम वक्त पर अदा करते हैं, न ही दीन की, न ही मिल्लत की हम पासदारी करते हैं। इतनी सारी बीमारियां, दीनी बीमारियां हमारे अपने अंदर हैं, हम इसका इलाज नहीं ढूंढते। अल्लाह ताला कुरान में इलाज बताया है। अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, इंतशार हो जाए, अगर तुम्हारे दरमियान जो है लोगों में जो है तनाज़ात पैदा होने लग जाए, अल्लाह व रसूल इन तनाज़ात फी शै अल्लाह व रसूल, अगर तुम्हारे माबैन किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, उन मामले को अल्लाह और रसूल की कसौटी पर तोड़ो। देखो इख्तिलाफ को, देखो अपने बुजुर्गों की रस्म और रवाज को, आने वाली पिछली कौमों से चलने वाले रस्म और रवाज को हम न देखें। अगर इख्तिलाफ है इबादत में, नमाज में, रोजे में, हज में, उम्र में, ज़कात में, किसी भी मामले में अगर इख्तिलाफ को हम पाते हैं, हम अपने इख्तिलाफ को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर पेश करें। किताबुल्लाह जो फैसला कर दे हम उसको तस्लीम कर लें, सुन्नत रसूल जो फैसला कर दे हम उसे तस्लीम कर लें। उस बीच में किसी की बात आप न चलाएं, रसूलुल्लाह की बात और
किसी की नहीं चलती है। अइम्मा दीन ने यही बताया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वही बताते हैं, इदा सहल हदीस फहुव मज़हबी, जब मेरी बात रसूल की बात के खिलाफ हो जाए, मेरी बात छोड़ दो और सही हदीस पर अमल करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मदीने में दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे, आपने अपने शागिर्दों से कहा, देखो ये जो कब्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, दुनिया में सब लोगों की बात को ठुकराया जा सकता है और लिया भी जा सकता है, हर एक की बात को लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये जो कब्र वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये जो कब्र वाले हैं, इनकी कोई बात तो छोड़ी नहीं जा सकती है, हर एक बात को ली जा सकती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में फरमाया, मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज रसूल तुम्हें दे दे उसको कबूल कर लो और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे उन तमाम चीजों से रुक जाओ। रसूल ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चारों चप्पे में मदीना की गलियों में भेजा, देखो अगर कहीं ऊंची कब्रें अगर तुझे नजर आए जमीन के बराबर कर दो, जहां जहां ऊंची कब्रें तुझे नजर आए, जहां जहां कब्रों पर मस्जिद तामीर हो, जहां जहां कब्रों पर इमारतें तामीर हो, जहां जहां कब्रों पर गुंबदें और पत्थर लगाए गए हो, उन्हें चूना और गाढ़ा किया गया हो, जमीन के लेवल में कर दो। अगर आप जो है, अगर हम दावा करते हैं हम सुन्नी हैं, हम पैसे रसूल से हैं, हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नवासे रसूल के खानदान से हैं, हम आले बैत में से हैं, हम सैयदी हैं, अगर आप दावा करते हैं तो रसूलुल्लाह के बात के सामने आप किसी की बात नहीं चलाएंगे। हम इसी बात पर अपनी बातों को खत्म करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारे ईमान की इस्लाह कर दे, हमारे तौहीद की इस्लाह कर दे, ऐसा हमें तौहीद पर चलाने वाला बना, इसलिए कि अल्लाह ताला